Learn the art of investing on MoneyWise. Hello and welcome to the MoneyWise podcast. My name is Sheetal, and this is that time of the year when we are all either a little disappointed or supremely happy that a certain extra amount of money is going to come our way, either in the form of increment, which is great, or even a one-time bonus. Different companies do it in different ways, but we've decided to spotlight this area, right? What happens when you get some extra money into your kitty? Do you prioritize it towards buying a brand new car or that watch that you've been saving up for, or do you do something wiser? And that's just why we've got an expert joining us on the show. Pankaj Ladhaji is here. He's a seasoned mutual fund distributor with over 35 years of experience in his field. And he also has a very strong presence on YouTube. We might want to check him out. But Pankaj, welcome to the show, and thank you so much for agreeing to be part of the MoneyWise podcast. It's a pleasure for me to be a part of this session. Thank you. So investing, salary, increment and bonus, Pankaj, is a theme today. And bonus and increment really sometimes go hand in hand and sometimes they don't. So do tell us about these two aspects being a golden vehicle for your investment strategy. Whenever you get this salary, increment or bonus, think these things as an extra cash. Not just like the extra cash. Rather, you should think as investment opportunity, maybe by lump sum or by SIP. जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि sitting in the shade today because someone planted a tree long ago. Remember, it is not about just making money. It is about keeping money and growing it wisely. और रॉबर्ट टी कियोस्की भी अक्सर ये बात कहते हैं कि channeling your extra income, extra money into the mutual fund is just like making your money to work for you. यही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता है. इसीलिए हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट है न सिर्फ कंपाउंडिंग बल्कि इट गिव्स यू डाइवर्सिफिकेशन. जब भी आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं यू कैन रीअलाइन योर पोर्टफोलियो. तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. उससे पहले ये मुझे क्लैरिफाई करना था पंकज जी, व्हाट शुड अ पर्सन डू बिफोर दे मेक द decision to invest? What are the first few steps when they've just received a salary or a bonus? क्या करना चाहिए लोगों को? This is most important question. First of all, you just need to check your financial health. Financial health means you need to make a balance sheet. Just companies make their balance sheet where they put left hand side their liabilities and right hand side their assets. जैसे ही आप liabilities और assets को देखेंगे तो सबसे पहले remove all liabilities which is not earning money for you. Like you have purchased a car and you have taken a car loan, personal loan. जो भी पैसा आपके लिए ग्रो नहीं कर रहा, ऐसी कोई भी यदि लायबिलिटी है, जस्ट पे ऑफ देम फर्स्ट ऑफ ऑल. जैसे ही आप उनको पे करेंगे, क्योंकि हम अक्सर एक बात कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी लोन नहीं होना चाहिए अदर देन हाउस लोन या फिर एजुकेशन लोन. कोई भी लोन जो आपके लिए पैसा वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहा है वो लोन आपके पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए. तो सबसे पहला आपको करना है बैलेंस शीट चेक करना, लोन को क्लियर करना. जब आप ये काम कर चुके हैं देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग. Then only you should invest, otherwise just reduce your debt only. Does this investment strategy of an individual really change? क्या आपने ये देखा है कि किसी को बोनस या इंक्रीमेंट मिला है और सडनली वो अपने एडवाइजर के पास में जाके ये कह रहा है कि और कह रही है कि मुझे मेरा स्ट्रैटेजी बदलना है? Does that really have a effect और ये मतलब ख्याली पुला है थोड़ा कि we thinking that इतना बड़ा इंक्रीमेंट मिलेगा कि कुछ तो डेंट होगा मेरे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में? यहाँ एक बात मैं बता दूं, जनरली लोग जो समझदार लोग होते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाके बात करते हैं कि आप हमें रीअलाइन कर दीजिए हमारे पोर्टफोलियो को. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्हेनेवर यू गेट दिस इंक्रीमेंट और बोनस इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू फाइन ट्यून योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. लेकिन एक बात ध्यान रखें, इट इज ऑल अबाउट फाइन ट्यूनिंग, नॉट अबाउट changing your strategy. No matter what happens to you, stick to your original plan. आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, उसको रीबैलेंसिंग कर सकते हैं. यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि आपकी इनकम बढ़नी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट से. जो ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है ये आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग या अपने गोल को रीअलाइन करने के काम आएगी. यदि आप अपने पोर्टफोलियो को या अपने गोल से बहुत जल्दी पास पहुंच जाएंगे तो इट इज बेटर फॉर यू. और चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो. तो इसलिए
कई लोग आते हैं, जो नहीं आते हैं उनके लिए एक लेसन होना चाहिए कि इट इज टाइम टू रीअलाइन योर पोर्टफोलियो. That part is very clear. Now, what we need more clarity on, Pankaj ji, is the approach with respect to apportioning this fund if it has come to you. Should it be towards your short-term goals or should it be towards your long-term wealth creation plans? जब तक हम शॉर्ट टर्म गोल की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल मीन्स कि आप खर्चा करना चाहते हैं बहुत जल्दी. इट मीन्स कि आपको डोपामाइन रिलीज करना है, क्योंकि कभी भी आप खर्चा करते हैं तो उसमें आपको खुशी मिलती है. लेकिन क्या खुशी सिर्फ इसी में मिलती है? क्या आपको खुशी से ज्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? खुशी, शॉर्ट टर्म खुशी, नियर टर्म खुशी या लॉन्ग टर्म सेफ्टी, विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू? सपोज क्यों गेन मिला, आपने क्यों खर्चा किया, वो खत्म हो गया. लेकिन आज की जो सबसे बड़ा चैलेंज है इन्वेस्टर के सामने, वो ये है 30-30-30 का चैलेंज. जिस समय अंग्रेज इंडिया में आए थे उसमें इंडिया की एवरेज एज थी 31 इयर्स, और जब अंग्रेज 1947 में गए थे देन आवर एवरेज एज वाज 47 इयर्स, और आज 75 ईयर बाद में ये है 65 की. आपको क्या लगता है जब एक 90-80% जो हमारे व्यूअर्स सुनेंगे उनकी जब रिटायरमेंट आएगी तो उनकी एवरेज एज होने वाली है 85 to 95. एवरेज हम यदि 90 भी मान लें तो 30 साल उनका लग गया किस काम में? उनका एजुकेशन में या जॉब सर्च करने में. 30 साल उनका आया किस में? उनका अपने अर्निंग में. लेकिन नेक्स्ट जो 30 साल है इसके लिए अरेंजमेंट करना ही आज की सबसे बड़ा चैलेंज है. और ये जो जनरेशन मिलेनियन और जनरेशन जेड है उनका सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि वो अपने प्रीवियस जनरेशन से पुअर है. तो यदि उन्होंने आगे प्लानिंग नहीं की तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. तो ऐसे में उन्हें ये बैलेंस करना होगा, क्या उन्हें शॉर्ट टाइम में डोपामाइन रिलीज करना है या फिर लॉन्ग टर्म में सेफ्टी, किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, और उसको बैलेंस करना होगा. और हाँ, यदि हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में यदि वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, फिर भी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो लिक्विड फंड, डेट टाइप ऑफ फंड जहां सेफ्टी ज्यादा है और लिक्विडिटी ज्यादा है वहां डाल सकते हैं. और यदि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का डिसाइड किया है तो उनके पास दो ऑप्शन है. नंबर 1, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान लें जिससे कि वो रीबैलेंसिंग कर सके, बल्कि एवरेज आउट कर सके अपने पोर्टफोलियो को, या फिर बैलेंस एडवांटेज टाइप ऑफ फंड जिसे इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में हम इन्वेस्टमेंट का एडवाइस कर सकते हैं इनको. पंकज जी, यू हैव रियली आई थिंक पानी फेरोड ऑन टॉप ऑफ माय प्लान्स टू गो क्विकली एंड बाय दैट घड़ी. वैसे मुझे इंक्रीमेंट तो मिला नहीं है, फिर भी if it comes anytime soon, I'm certainly not going to spend it on a vacation or a ghadi. I'm going to think long term as you have suggested to us. But here's another important aspect, right? Diversification. You did talk about that. आपने इस बारे में बात की पहले शो पे, पर इस पे if you can give some advice on how investors can use your additional income to diversify their portfolio effectively. Why we talk about diversification? इसका सबसे बड़ा रीजन है दैट इज रिस्क को मिनिमाइज करना, रिस्क को रिड्यूस करना, न कि रिटर्न को बढ़ाना, वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करना. और इसीलिए जनरली आपने ऑलरेडी आपने सेइंग सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. इट इज अबाउट स्प्रेडिंग द रिस्क, इट इज नॉट अबाउट इंक्रीजिंग द रिटर्न. तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो जनरली अक्सर मैंने देखा है कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में गोल्ड का एलोकेशन बहुत कम है. क्या वो गोल्ड म्यूचुअल फंड नहीं ले सकते हैं? लेकिन जब भी हम गोल्ड की बात करते हैं, दे यूजुअली टेक वी हैव सो मच ऑफ ऑर्नामेंट्स विद माय वाइफ. बट दैट इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट. एक बार अपनी वाइफ को जाके बोलिए, क्या आपको भी कोई बोला जाए कि लाइए कुछ ऑर्नामेंट्स दीजिए, आज मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बेच के आता हूँ, क्या आप बेच के आ पाएंगे? क्या आपकी वाइफ अलाउ करेगी? तो दैट इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज फॉर योर कंजम्पशन. इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप अपना फ्रिज नहीं बेच सकते, आप अपना एसी नहीं बेच सकते, तो वो आप बेच नहीं सकते. तो आपको रियल में एसेट एलोकेशन करना है. यू नीड टू डाइवर्सिफाई इवन इन गोल्ड. और इसके अलावा डेट और इक्विटी और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, वो तो अपने आप हो गया. लेकिन एज ए गोल्ड को भी रियल में आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए डाइवर्सिफाई करना होगा, और साथ में डेट और इक्विटी में भी ध्यान दिया जा सकता है. अब बात करें कुछ गलतियां के बारे में which you see people make commonly when it comes to investing this extra kind of income, and if you can point us in the direction of how to avoid these typical mistakes that people make. Carl Richard क्या कहते हैं? The biggest risk is not the market but your own behavior. It is time to be rational. It is time to focus on your long-term financial success, not on short-term goals या short-term expenditure.
तो ऐसे इसमें सबसे पहला काम ये करना है, आपको रेशनली सोचना है क्या आपको वास्तव में खर्चे की जरूरत है या वेल्थ क्रिएशन या सेफ्टी की जरूरत है। अकॉर्डिंगली पहली मिस्टेक यही करते हैं कि वो खर्चे ज्यादा करते हैं, क्योंकि पहले से कमिटमेंट होता है कि जब भी मेरा इंक्रीमेंट होगा बच्चों को ये दिला दिया जाएगा, स्पाउस को ये दिला दिया जाएगा, पेरेंट्स को ये दिला जाएगा, फैमिली में सब अपने अपना जितना इंक्रीमेंट होता है उससे ज्यादा तो प्लानिंग लेके बैठे होते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये करते हैं। सेकंड मिस्टेक, यदि फिर उसके बाद में कुछ बच जाता है तो तुरंत उन जैसे ही लोगों को पता लगता है कि इनके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो देयर आर पीपल, वो आते हैं आपके पास, दे आर हियर टू मेक यू मोर रिचर। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है। जिनके पास पैसा नहीं है उनको पैसे वाला बनाने के लिए कोई नहीं आता है, लेकिन जब आपके पास पैसा आ जाता है या आपको खबर लग जाती है तो इनको बोनस मिला है, तो ऐसे टाइम पे कोई भी जल्दीबाजी का डिसीजन नहीं करके बल्कि आप होमवर्क करें और सोच समझ के रेशनल डिसीजन दें। तीसरा जो मिस्टेक करते हैं, जब एक्स्ट्रा पैसा आता है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे फ्री का पैसा आ गया हो। डोंट इग्नोर इट। ये आपकी रिस्क टॉलरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखिए, गोल्स को ध्यान में रखिए और इसको रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है, न कि एक्स्ट्रा मनी को फ्री मनी मानते हुए कैसे भी इन्वेस्टमेंट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, बोनस है। तो ये 3 नॉर्मली जो मिस्टेक है जो मैंने अक्सर इन्वेस्टर्स में देखी है। Speaking of the future, Pankaj ji, I'm hoping that everybody does a good job at work and constantly gets rewarded every year with an increment or a bonus or both in some cases. But if this is the case, right, if one can count on some sort of an increment coming one's way, how can consistent investing of this salary increment or bonus money really impact one's financial future? Help us connect the dots so we can wrap up the conversation on a very nice, happy kind of a note. Please tell us. यहाँ मैं अक्सर एक बात कहता हूँ मेरे इन्वेस्टर्स को कि यदि आप जॉब कर रहे हैं और 1/3 पैसा आप सेव कर रहे हैं और 10% की एनुअल आपको इंक्रीमेंट मिल रही है, तो 15 साल के जॉब के बाद में आपकी सैलरी की इनकम से ज्यादा आपकी पोर्टफोलियो की इनकम होनी चाहिए। और वो हो सकती है यदि आप 1/3 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो, और साथ में इंक्रीमेंट का भी एटलीस्ट 1/3 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप सोचिए कि 15 साल बाद में कोई भी आप जब आपकी सैलरी की इनकम से ज्यादा आपकी पोर्टफोलियो की या पैसे में इनकम हो जाएगी, आपका बॉस आपको ये नहीं कह सकता या मिसबिहेव नहीं कर सकता आपसे। आप कभी भी आप फ्री हैं, कभी भी अपनी जॉब को चेंज करने के लिए आप फ्री हैं, कोई भी बड़ा रिस्क लेने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। तो ये फ्रीडम यदि आपको चाहिए तो फ्यूचर प्लानिंग में आपको वेल्थ तो क्रिएट करनी होगी। दूसरी बात, जनरली जब भी हम पैसे की बात करते हैं और मुझे पता लगता है कि मैडम के पास बहुत पैसा है, तो लोग जनरली आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि इतना पैसा क्यों रख रखा है, एंजॉय करो, लाइफ जी लो, एक ही लाइफ मिली है। तो लाइफ हम क्यों जीना चाहते हैं, लाइफ कैसे जीना चाहते हैं? लाइफ जीने के लिए वो कहेंगे कि आप घूमने जाइए, आप ब्रांडेड कपड़े पहनिए, आप लग्जरी कार में बैठिए या लग्जरी चीजें कंज्यूम कीजिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, इन सब चीजों को आप कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? क्या रियली आपके लिए कर रहे हैं या इन सब को फॉरेन जाकर, थाईलैंड जाकर या स्विट्जरलैंड जाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं जिससे लोग अप्रिशिएट करें? इसका मतलब ये आपके लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि आप लोगों का अप्रिशिएशन लेने के लिए कर रहे हैं। तो यदि आपको अप्रिशिएशन लेने में एंजॉयमेंट मिलता है, खुशी मिलती है, तो यदि आपके पास पैसा है तो एक बात मान लीजिएगा कि लोगों का बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाता है। कैसे? द मोर मनी यू हैव इन योर बैंक अकाउंट, पीपल बिहेव विद यू इन डिफरेंट वे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि वेल्थ क्रिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो न आपको खुशी देता है, डोपामाइन रिलीज करता है, बल्कि साथ में सेफ्टी भी देता है। और डायरेक्ट रेगुलर इन्वेस्टिंग आप जो करते हैं, पावर ऑफ यू गेट द बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इट इज जस्ट लाइक प्लांटिंग ए सीड एंड रीप देम लेटर ऑन और हार्वेस्ट देम टुमारो। तभी तो हम कहते हैं कि खुशी आपको एक बार मिल सकती है, लेकिन ये खुशी आपको परमानेंट मिलती रहेगी। और इसीलिए कहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है और ये खुशी लेनी है। स्ट्रेटेजी आपके पास 2-3 हो सकती है। नंबर 1, आप अपने नई एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आप यदि आपके पास पोर्टफोलियो एलोकेशन नहीं है तो बूस्टअप कर सकते, तो अपने एसआईपी को बूस्टअप करके स्मॉल कैप, मिड कैप या कोई भी टाइप का फंड जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है वो कर सकते हैं। टॉप अप एसआईपी कर सकते हैं। आप लगता है कि आप रीबैलेंस नहीं कर सकते या आप हर साल इंक्रीमेंट तो 10% होना है, लेकिन उसको आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो स्टार्ट में ही टॉप अप एसआईपी ले लें। ऑटोमेटिकली आपकी लायबिलिटी की तरह वो डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट्स में और आप मस्त हो जाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो इसलिए ओवरऑल ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी के साथ में यदि आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, नेवर लेट योरसेल्फ गेट डिस्करेज्ड। क्यों? क्योंकि कई लोग इनिशियली 1-2
दो बार यदि ऐसा करते हैं लेकिन धीरे धीरे डिस्करेज हो जाते हैं और वो किसी और चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान रखना है, आपको खुशी लेनी है किसमें, जिसमें बड़े लोग खुशी लेते हैं, पैसे वाले लोग खुशी लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज, आपने अपना पहला इंक्रीमेंट किस चीज पे स्पेंड किया था, अगर आपको याद है? पहली जॉब जब आप 20 साल के थे शायद। आई बिलोंग्स टू ए बिजनेस फैमिली, तो मैंने तो हमेशा बिजनेस ही किया है और जब भी बिजनेस किया है हमने हमेशा बिजनेस में ही पैसा लगाया है और इन्वेस्टमेंट ही कर रहे थे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो मैं तो आज भी इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ और सबसे बड़ा एंजॉय तो इस बात का करता हूँ कि आपका बिहेवियर, जब आप लोगों का बिहेवियर चेंज देखते हैं ना, बस उसमें जो खुशी मिलती है वो किसी चीज में नहीं मिल सकती आपको। Excellent. What a nice conversation, Pankaj, and thank you so much for helping us understand this very important aspect of life and living. For working people, it's a turning point, and there are so much of excitement that comes into one's life at the prospect of an increment. But you have given us some guidance on how to approach that phase of life. Thank you so much for guiding us. Thank you, Sheetal. Thank you very much for inviting me, and thank you to all the viewers. Thank you very much. You're listening to MoneyWise, brought to you by Bandhan Mutual Fund. Check out the rest of our series for more insights on investment and personal finance. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.